મણે પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરતા આર્થિક ક્ષેત્રના વિવિધ મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે મોદી સરકારના 10 વર્ષમાં વિવિધ કરન્સી સામે રૂપિયો મજબૂત બન્યો છે અને ઇલેક્ટ્રોલ બોન્ડ એક પારદર્શી પ્રક્રિયા છે। આવો જોઈએ તેનું નિવેદન कि यूएस इकोनॉमी, यूएस डॉलर्स, इनका जब पोजीशन हार्डन होता है, रुपी उनके खिलाफ एक्सचेंज में वोलेटाइल हो जाता है। मैं इसका कॉन्ट्रास्ट के लिए बात बोल रही हूं, रुपी अगेंस्ट द येन, रुपी अगेंस्ट द यूरो। आप एक बार कंपेयर करके देखो। रुपी क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन सब के कारण रुपी उनके अपने ताकत में बाकी करेंसी के खिलाफ स्टेबल रह रही है। सिर्फ यूएस डॉलर के खिलाफ सिर्फ रुपी नहीं, वेरियस करेंसीज, येन हो, यूरो हो, ब्रिटिश पाउंड हो, सबका सिर्फ अगेंस्ट यूएस डॉलर्स फ्लक्चुएशन ज्यादा रह रही है क्योंकि यूएस इकोनॉमी, यूएस फेड का डिसीजन, इन सब के कारण अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो बढ़ रही है, 3 जगह पर युद्ध चल रही है और ईरान के ऊपर हमला वगैरह, उसके वजह से अनसर्टेनिटी, और जहां मिडल ईस्ट से हमारी ऑयल, सिर्फ हमारी नहीं पूरे दुनिया का ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, उसके अनसर्टनिटीज, क्योंकि उधर हाई सीज में भी पायरेसी वगैरह हो रही, इसके कारण ये फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। No, 1 minute, ma'am, 1 minute. I gave an interview and I wish you read that interview more for particular words that I've used. I didn't say we have a plan to bring. I was asked, would you want to do something on it? I said, if we have to do it, we will certainly have to see how all the stakeholders are going to give us our inputs. It should certainly be better than what this electoral bonds were. This was much better a step than what was prevailing earlier, where there was no regulation, no law, no nothing governing, it was free for all. This brought in a certain transparency in that both the bond buyer and the redeemer are putting their monies into the bank account. As a result, it brought a clear-cut thing that it is not cash which is being transacted, it is money which is going into the account. And therefore, if in future we have to do something, we will have to do it after consultation. That's how far I went. I didn't say there is a plan with me. I didn't say I'll consult so many different stakeholders and not others. Nothing was specific. मैं मानती हूँ आप पॉलिटिकल पार्टीज जो विषय उठा रहे हैं उसको आपके प्रश्न के रूप में प्रश्न इधर पूछ रहे हैं, ना कि आपके अपने ओपिनियन। सो नहीं, ठीक है, ठीक है। No, I'm asking you. I'm asking you. Don't get offended. I'm asking you. I'm saying probably you are putting a question which opposition is saying. Now you're saying no, it's not opposition, it's my opinion. Let me humbly tell you, it's not right. Let me humbly tell you what you're saying is not right. Why? Inflation has not crossed the tolerance band under Prime Minister Modi's 10 years. You please take the data and see it. Not 1 month has it crossed. Probably just 1 month it crossed narrowly, but it has always been under the tolerance band. Whereas earlier, because you brought in rupee value in 2014, I want to tell you this. Rupee value, whatever maybe it was in 2014, you were a fragile economy. You were under, if there is a list of 100 economies and the bottom economies are all fragile, you were within 5 in that bottom, नीचे से 5वीं। उस समय आपके करेंसी जो भी वैल्यू है भाई, उसका क्या महत्व है? इकोनॉमी शर्मरा रही है। उस समय करेंसी का वैल्यू के बारे में कोई कुछ सोचता नहीं है। इस देश में क्या उम्मीद रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, वही था सोच उस समय। उससे हम इतने कड़ी मेहनत के बाद टॉप 5 में एक हो गया है। वी आर वन अमंग द टॉप 5, वी आर इन द 5th पोजीशन। और ये कॉन्फिडेंटली हम कह पा रहे हैं
कि अगले 2 साल 2.5 साल के अंदर तीसरी स्थान पर पहुंचेंगे। सो करेंसी का वैल्यू जितने भी अच्छा क्यों ना हो, व्हेन योर इकोनॉमी इज इन द बॉटम 5, उससे क्या फायदा। वो एक है। इकोनॉमी का इन्फ्लेशन का विषय मैंने बोल दिया। उस समय फ्रजाइल फाइल का इकोनॉमी जब इंडिया था, भारत 22 महीना डबल डिजिट इन्फ्लेशन चलता था लगातार, विदाउट अ ब्रेक। मतलब 2 months शॉर्ट ऑफ 2 years, लगातार डबल डिजिट इन्फ्लेशन। सो मैं हम्बली हाथ जोड़कर विनम्रता से आपसे मैं बोलती हूं, प्लीज डेटा एक बार अध्ययन करिए। नहीं, सही नहीं है, प्लीज आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, रोजगार के ऊपर आपने बात बोली, मुझे मालूम नहीं है कौन सा डेटा आपको हाथ में उपयोग कर रहे हैं। भारत में रोजगार के ऊपर फॉर्मल सेक्टर में एक हिस्से के ऊपर डेटा कलेक्शन होता है, पूरे फॉर्मल सेक्टर के ऊपर भी डेटा कंप्लीट नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर बिल्कुल ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर शायद गवर्नमेंट के पास होगा। डेटा ही इनएडिक्वेट है। मैं गर्व से नहीं बोल रही हूं, मैं एक कमजोरी में मान रही हूं। डेटा इनएडिक्वेट है, कोई उसको अध्ययन करके कुछ कंक्लूजन में आने का रिस्क कर नहीं सकते। इसीलिए रोजगार के विषय में मैं सिर्फ आपको यह बोल रही हूं। तो समाचारों में हाल बस आटલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।